we have read about the law of demand, in which we have read that there is inverse relation between price and quantity demanded. Law of demand states that other things remain equal, then when price increases, quantity demanded decreases. So we have seen there is the downward sloping demand curve we have got, and which shows when price increases, demand also, when price is P, demand is OQ, and when price is OP1, when price decreases, demand increases. So there is the inverse relation between price and quantity demanded. But there are some exceptions to the law of demand. There are some commodities where law of demand does not work. In this, there is the direct relation between the price and quantity demanded. Means in these commodities, when price increases, quantity demanded also increases, and when price decreases, quantity demanded also decreases. So in such commodities, our law of demand is like this, upward sloping demand curve. So generally we have read law of demand states the inverse relation between price and quantity, but in this exceptions, in these commodities, in some commodities we get the law of demand which is upward sloping, means when price is P, OP, quantity is OQ, and when price is OP1, quantity also increases to OQ1. प्राइस इंक्रीज हुई OP से OP1, तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई OQ से OQ1. So this is the curve which we get in the exceptions to the law of demand. First is articles of distinction. There are certain goods which are demanded due to their higher price. These articles are called articles of distinction, which we demand for social status, for maintaining our social status, like precious diamond, like vintage cars, like Apple product of Apple phones और the Apple laptop, एप्पल के जो भी अपडेटेड प्रोडक्ट्स हैं. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन विच आर डिमांडेड ड्यू टू देयर हायर प्राइस. इफ़ देयर प्राइस फॉल्स, अगर इन आर्टिकल्स की लाइक डायमंड की प्राइस कम हो जाती है, या फिर विंटेज कार्स की प्राइस, एप्पल सेलफोन्स की प्राइस कम हो जाती है, देन दे आर नॉट कंसिडर एज द आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन. पीपल डिमांड दीज गुड्स due to their higher price, and when their price increases, their demand also increases. Due to their higher price, people demanded these goods, and here the law of demand fails in this category of the goods. So it is the exception to the law of demand. Here there is the direct relation between price and quantity demanded. Price increases, demand also increases. Price decreases, demand also decreases. Second is the given goods. Given goods are inferior goods, highly inferior goods, or we can call it low quality good. We already have read about the inferior goods. Inferior goods के केस में हमने देखा था इनकम इफेक्ट में, inferior goods में क्या होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है. नेगेटिव इनकम इफेक्ट हमने पहले पढ़ा था. व्हेन इनकम, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, देन डिमांड फॉर इंफीरियर गुड और गिवन गुड डिक्रीजेज. जनरली नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है कंज्यूमर की तो डिमांड भी बढ़ जाती है. बट इन द केस ऑफ गिवन गुड्स और द इंफीरियर गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स, इनकम जब बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है. दिस इज अबाउट द इनकम इफेक्ट, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस इफेक्ट. तो यहाँ पर हम देखेंगे गिवन गुड्स जो कि हाईली इंफीरियर गुड्स हैं,
इनकी प्राइस कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो डिक्रीजेस. मीन्स हियर इज द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. जनरली एज वी हैव सीन, लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? देयर इज द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. लेकिन यहाँ पर हम एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. तो गिवन गुड एक्सेप्शन है, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है. वी कैन टेक एनी एग्जाम्पल लाइक low quality goods or inferior goods are generally used by the people who are having the low income. So we can take like people are using the bajra which is a coarse grain. Those people use in their daily meal. The bajra they are using, if price of bajra, for example प्राइस ऑफ बाजरा सपोज फॉल हो गई है, तो प्राइस फॉल होने से क्या होगा? कंज्यूमर डिमांड बाजरा लेस, डिमांड में भी कमी आ जाएगी. क्यों आ जाएगी? जब बाजरा जो कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूमर यूज़ में ले रहा था और उसकी प्राइस फॉल हो गई है, मान लीजिए पहले 50 रुपये 50 रुपीज़ पर केजी था बाजरा, और अब जो है 30 रुपीज़ पर केजी हो गया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस फॉल हुई है. ठीक है, तो अब उसकी कंज्यूमर की 20 रुपीज़ यहाँ पर जो है गैप, दिस इज द, ये कंज्यूमर के 120 रुपीज़ यहाँ बच रहे हैं. दिस इज द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ये रियल इनकम है कंज्यूमर की जो कि इंक्रीज हो गई है. मैंने पहले भी बताया था रियल इनकम इज डिफर फ्रॉम द मनी इनकम. ये मनी इनकम नहीं है कंज्यूमर की, ये रियल इनकम है. पहले वो 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग पर केजी बाजरा परचेज करता था, अब 30 रुपीज़ पर केजी कर रहा है, तो 20 रुपीज़ का यहाँ पर ₹20 का उसकी रियल इनकम इंक्रीज हो गई है. तो अब वो क्या करेगा? वो 20 रुपीज़ क्योंकि उसके बच रहे हैं, तो वो अब लो क्वालिटी प्रोडक्ट ना यूज़ में लेकर के व्हाट ही डू, वो थोड़ा सा हाई या जिसे हम नॉर्मल गुड कहते हैं उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा. कंज्यूमर अब लो क्वालिटी से इन्फीरियर हाईली इन्फीरियर वो यूज़ में ले रहा था, जिसको हम गिवन गुड कह रहे हैं, गिवन गुड से क्या करेगा? मूव कर जाएगा नॉर्मल गुड पर. अब वो नॉर्मल गुड खरीद सकता है क्योंकि उसकी रियल इनकम बढ़ गई है, और वो अब इसकी डिमांड कम कर देगा, तो बाजरा की डिमांड तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और अब वो नॉर्मल गुड, मे बी इट विल बी व्हीट और राइस, वो नॉर्मल गुड खरीदने लगेगा. तो यहाँ पर प्राइस कम होने पर डिमांड भी कम हो गई है. देयर इज द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. सो दिस लॉ ऑफ डिमांड ऑल्सो फेल्स व्हेन कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बाय इट्स प्राइस. प्राइस अगर ज़्यादा है तो क्वालिटी भी गुड है, ऐसा कंज्यूमर कंसीडर करते हैं. वी कैन टेक एन एग्जाम्पल लाइक ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. Organic and non-organic vegetables or the fruits. People consider organic product as of the high quality product, and they can pay higher price for these product. क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, एंड इफ प्राइस ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस, their demand also increases, because most of the people, especially the richer section of the society, they consider that organic products are of high quality, and they want to pay more and more for the organic products. So here we can see there is the direct relation between price and quantity demanded. क्योंकि इनकी प्राइस ज़्यादा है इसलिए ये कंसिडर किए जाते हैं कि ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, एंड दिस इज़ द इरेशनल जजमेंट ऑफ द कंज्यूमर दैट they are consider this product as of high quality because of the high price. इस तरह का बहुत सारे commodities में इस तरह के cases हमें देखने को मिलते हैं. Similarly sometimes what happens, people have the habits के according किसी product की जब habit हो जाती है consumer को, then also he is ready to pay more for the more quantity. क्योंकि हैबिचुअल होने पर एडिक्शन हो जाता है एक तरह से, ये मान लीजिए एडिक्शन हो गया है, हैबिचुअल हो गया कंज्यूमर, देन ही इज़ रेडी टू पे मोर
for the commodity. Here also law of demand fails. So these are some exceptions to the law of demand.